parts. Okay, so mostly we find that history is a boring subject and all. I'm going to try to make it interesting for you. Okay, so let's start. See, in social science, most probably we study the three parts, right? Our book is also divided into three parts, that is history, geography and SPL. See, in case of history, we study about the past records, you know about that, right? Past records, the past events which occur, that we are going to study in the history. And in geography part, we study about the places, the environment of those places, the people living there, the interaction of people with the environment of that particular place and all, which we have already studied. Other than that, we even study about the surface, physical characteristics of the earth, the surface of the earth and all, right? So that is about the geography part. Then we'll move to the SPL. So SPL is what? Social and political life. Means we have to study about the social aspects, the political aspects of our country, of an economy in this, like duties of citizen, rights of the citizen, fundamental rights which we have studied, our constitution, features of our constitution and many more things which we learn in SPL part, right? So these are the three parts of our social science in which we are studying with the history part. Now as I told you, history deals with the past records, right? Now past is actually a very vast concept. अब अगर मैं पास्ट की बात करूं तो जब से ये दुनिया बनी, जब इंसान बना, तब से लेकर अब तक तो सारा पास्ट ही है, राइट? सो इतना लंबा पास्ट स्टडी करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इतना सारा हम कैसे स्टडी करेंगे, राइट? सो इसीलिए इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या किया, इस पूरे के पूरे पास्ट को यानी हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में, थ्री पीरियड्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज एंशिएंट पीरियड, medieval period and modern period. These three are the periods of history we can say which is divided into. Okay. Now these three periods, जब ये three periods divide किए गए तो कुछ common characteristics को ध्यान में रख के किए गए. Like past में ये चीजें थी तो ये जो common चीजें हैं, like सती सिस्टम था पहले, फिर वो फीमेल इन्फेंटिसाइड सिस्टम था, ऐसे बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम्स वगैरह थे, जो ऐसा स्ट्रक्चर था, वो सारा जो है मान लो एंशिएंट में डाल दिया. फिर जो थोड़ा बहुत अगर मैं बोल सकती हूँ जो चेंजेस आए, राइट, दैट विल बी अंडर मेडिवल की थोड़ा चेंजेस आए, थोड़े अभी भी पुरानी चीजें चल रही थी. या फिर ऐसा बोलो कि जो पूरी तरह से चेंज आ गए, सारी की सारी ओल्ड प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हटा दी गई एंड वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, इन अ डेवलप्ड वर्ल्ड. So in developed world, if I say that is about the modern period, जो अभी हम जी रहे हैं, that कि काफी सारे चेंजेस आए आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखें तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रैक्टिसेस में चेंज आए थे. So that is about the modern. So we can say that in this way these three periods are created, which is known as periodization of history. जो हिस्ट्री को ये तीन पार्ट्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड एज periodization of history. Okay, so first we will going to learn about the periodization of history in depth, कि ये जो periodizations हुए यानी जो अलग-अलग periods बनाए गए वो कैसे बनाए गए, क्या सोच के बनाए गए, क्या चीजें हैं जो ancient में आएंगी, क्या है जो modern में आएंगी and all. Okay, so let's start with that topic, periodization of history. As I told you that periodization of history depend on to some common characteristics, some common changes which occur in a particular period, right? And उसके basis पे ये तीन टाइप के जो मैंने आपको periods बताए थे वो डिवाइड किए गए. So similarly अगर मैं देखने जाऊँ entire world में, तो entire world में past को study करने के लिए, history को study करने के लिए इसी तरह से periodization किया जाता है. लेकिन हर एक कंट्री में सेम टाइप का पीरियडाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है. इंडिया का पीरियडाइजेशन यानी जो हमने पीरियड्स डिवाइड किए हैं वो कुछ अलग होंगे. उसी की जगह पे अगर मैं यूरोप साइड में जाऊं या दूसरी कंट्रीज में जाऊं तो वहां का पीरियडाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. ओके, अब अगर बात करूं मैं इंडिया की, तो इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो पीरियडाइजेशन है दैट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द वेस्ट. ठीक है, हमने वेस्ट से काफी सारी आइडियाज ली हैं फॉर दिस पीरियडाइजेशन. अब अगर मैं वेस्ट साइड की बात करूं तो मेनली इन वेस्ट देयर आर थ्री पीरियड्स. फर्स्ट इज मॉडर्न, medieval and colonial period. See now what is these periods? Modern period is actually dealing with the modernity. Modernity means we can say with democracy,
scientific development, logical reasoning development, equality in our country, freedom, secularism, and many things which we have studied recently in the last video, right? So these all things, these all aspects are included in what? Modern period, where we are living in the modernity way, right? The second one is what? Medieval period. Medieval period is actually the period in which all the features of modern period are not included. जो मॉडर्न चीजें हैं, यानी कि जैसे मैंने बोला डेमोक्रेसी है, फिर उसके अलावा इक्वालिटी है, ये सारे फीचर्स मेडिवल पीरियड में नहीं थे. दैट वाज द मेडिवल पीरियड. वी कैन से दैट कि कॉलोनियल एंड मॉडर्न पीरियड के बीच वाला, जिसमें ना तो कॉलोनियल वाले कुछ फीचर्स हैं, ना ही मॉडर्न पीरियड वाले कुछ फीचर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द मेडिवल पीरियड. एंड द थर्ड वन इज कॉलोनी. अब ये कॉलोनी क्या है? सी, इन इंडिया the British rule, when there was a British rule in India, you know that we were not having any kind of freedom, right? They were dominating us a lot in case of political, in case of social, in case of economical way, but they were dominating us. We were not having even equality, we were not having freedom to say anything, to present our opinion and all. So that period was actually known as colonial period. Okay, so these three were the periods that were modern, dealing with modernity, medieval, in which the features of modern economy is not there, and third one is what? Colonial, जिसमें हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो हमारी इंडिया की हालत थी, like we were not having that freedom and equality, that is actually known as colonial period. Okay, so we are going to learn about this colonial period in depth. ये colonial period actually है क्या? ये तो मैंने आपको ऊपर से बताया. In depth we are going to learn about this. Okay, as I told you that we have to study the colonial period in depth. See, there is a term called colonization. Now, what is this colonization? See, it's actually a process of subjugation of one country over another. Colonization एक ऐसा process है जिसमें एक country subjugation करती है. Subjugation क्या है? It's actually a dominate. ठीक है, किसी पे dominate करना, किसी पे दबाव डालना या रूल करना. ओके, दैट इज कॉल्ड सब्जुगेशन, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल कर रही है, दूसरी कंट्री को डोमिनेट कर रही है. दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? colonization. Okay, actually this process leads to the political, economic and socio-cultural changes in conquered country. जो भी कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल कर रही है, वो दूसरी कंट्री में वो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली चेंजेस ला सकती है, और वो लाते ही हैं. वो इस तरह से रूल करते हैं वहाँ पे कि वहाँ के हर सिस्टम में दे कैन ब्रिंग द चेंज, दे कैन डोमिनेट दोज सिस्टम्स. लाइक ब्रिटिशर्स का एग्जांपल ले सकते हैं. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके ये सारी चीजें की थी, राइट? इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया. Other than that, इंडिया के कितनी सारी चीजों में they brought the changes politically, culturally, socially, हर तरह से they have dominated us, right? हर तरह से उन्होंने हर सिस्टम में चेंजेस लाए, हम पे रूल किया. तो that is actually a colonization. Okay, and जो कंट्री ऐसा करती है उस कंट्री को क्या बोलते हैं? colonizing country. ठीक है, उस कंट्री को क्या बोलेंगे? कॉलोनाइजिंग. जैसे कि अगर मैंने बोला ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया, तो ब्रिटिशर्स जो है दैट कंट्री इज नोन एज व्हाट? कॉलोनाइजिंग कंट्री. एंड इवन दे एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज एंड पीपल. सिर्फ ये लोग रूल करते हैं, चेंजेस लाते हैं, ऐसा नहीं है. दे इवन एक्सप्लॉइट द पीपल. मैंने जैसे बोला ना, डोमिनेट करते हैं. वो लोग लोगों को डोमिनेट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं. So these all are the things which occur under colonization. ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. Okay, that is the concept of colonization which can be asked for the 2 mark in exam. Okay, let's move to the next topic. Now see, there is one important topic, that is dates in history. अब many times we used to think यार इतनी सारी dates learn ही नहीं होती, कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, and all. ये सारी चीजें we learn in history and that is a part of it. अब बात आती है कि डेट्स लर्न करनी क्यों पड़ती हैं, क्या जरूरत है हर इवेंट की डेट्स को बताने की, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. सी, एक्चुअली
हम लोग हिस्ट्री में बहुत सारी ओल्ड स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं, ओल्ड इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की बात ले लो तो पहले क्या हुआ, हमने कौन से स्टेप्स उठाए, कौन से स्टेप्स जो हैं कब उठाए गए और उसके बाद उनके इम्पैक्ट क्या हुए, हमें फ्रीडम कैसे मिली। दैट इज ऑल अबाउट आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, राइट। सो इवेंट्स के सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए कि किस चीज के बाद क्या हुआ। आज अगर मैं कोई स्टोरी भी स्टडी करती हूँ तो मुझे सीक्वेंस में सारे इवेंट्स जानने पड़ेंगे ना कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ एंड ऑल। सो सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द डेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मेन रीजन दैट वी हैव टू स्टडी द डेट्स इन हिस्ट्री। नेक्स्ट इज चेंजेस। अब टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस हुए वो चेंजेस को स्टडी करने के लिए भी इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेट्स, टू रिमेंबर द डेट्स, बिकॉज पहले ऐसा था और इतने सालों में ये चेंज हुआ। दैट वी हैव टू स्टडी इन द हिस्ट्री, राइट। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंटल स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो चेंजेस स्टडी करना तो जरूरी है कि पहले क्या था और कितने सालों में ये चेंजेस आए। सो दैट चेंजेस, फॉर स्टडीइंग दैट चेंजेस अगेन द डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट रीजन इज टू कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट। लाइक कई बार आपने सुना होगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा हुआ। सो ये जो बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट है, अगेन फॉर दैट डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको ये तो पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस मिली कब और इंडिपेंडेंस के कितने साल पहले ये चीजें थी एंड उसके कितने साल बाद ये चेंजेस आए। सो अगेन पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर करने के लिए वी हैव टू स्टडी द डेट्स। Last one is some dates are having lasting impact. Like कुछ अचीव किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है उस पर्टिकुलर डेट पे, then also we remember that date. Like for example 15th August, the best we can say time in our Indian history when our India got the freedom. So that is a lasting impact on all the Indians about that date. 15th August हर एक के दिमाग में बसी हुई। इवन फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड से आप देखो तो ये डेट्स आती हैं। क्यों आती हैं? बिकॉज इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे जब इंडिया ने कुछ अचीव किया था, एक लास्टिंग इम्पैक्ट आया था इंडियंस के ऊपर। दैट्स व्हाई वी रिमेंबर दोस पर्टिकुलर डेट्स, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर व्हिच डेट्स इन हिस्ट्री आर इम्पोर्टेंट। अब जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ डेट्स की, तो इतने सारे एस्पेक्ट्स हुए हैं हिस्ट्री में, तो ऑब्वियसली बात है हर एक एस्पेक्ट्स की अलग अलग डेट्स हैं। अब इतनी सारी डेट्स थोड़े ना हम याद रख सकते हैं। सो इसीलिए हिस्टोरियंस ने कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करना डिसाइड किया कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स ही याद रखनी है। अब बात आती है कि उन्होंने ये कैसे डिसाइड किया, कैसे चूज करेंगे कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। सो हिस्टोरियंस ने काफी रिसर्च किया एंड उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि पर्टिकुलर टाइम में कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स हुए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स हुए हैं, उनमें से कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कोई भी एक इवेंट को बताने में, एक इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आज मैं बात करती हूँ शाहजहां के रूल की, तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ वो मुझे स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। लाइक उसकी मिलिट्री अचीवमेंट क्या थी, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए क्या एफर्ट्स किए, कब कब कौन से एफर्ट्स किए, दैट वी शुड स्टडी। फिर उन्होंने जो है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए क्या एफर्ट्स किए, कब किए, दैट वी हैव टू स्टडी। मींस कुछ ये सारे टॉपिक्स के रिलेटेड डेट स्टडी करना इज इम्पॉर्टेंट, राइट। उन्होंने उनके स्टेप से क्या डेवलपमेंट हुआ, दैट वी हैव टू स्टडी। सो द थिंग इज कि कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उसके रूल के टाइम पे, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि वो उस टाइम पे कितना एफिशिएंट था, कितना एफिशिएंट किंग ही वाज, दैट वी हैव टू फाइंड। सो फॉर दैट जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कुछ दैट ओनली वी हैव टू स्टडी, राइट। सो इस तरह से डेट्स को अलग अलग किया जाता है एंड कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स ही उसमें से निकाली जाती हैं ताकि आपको एक पर्टिकुलर इवेंट पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो दैट इज द हिस्टोरियंस व्हिच they have made efforts to find out
the important dates which you have to study. Okay, the next important thing is कि ये जो मैं बात कर रही हूँ डेट्स फाइंड करना, फिर शाहजहां के टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने क्या डेवलपमेंटल स्टेप्स लिए थे, ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेगी? हिस्टोरियंस भी जो हैं तब वो लोग थोड़ी होंगे, राइट? तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हमारी बुक में दी हैं, इतनी सारी हिस्ट्री की रिलेटेड हमारे पास एस्पेक्ट्स की डिटेल्स हैं, ये कहाँ से है? हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे क्या हुआ था? हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे शाहजहां ने क्या डेवलपमेंटल स्टेप्स उठाए थे? हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे उन्होंने क्या पॉलिटिकल चेंज किए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलाया? So these are some questions which arise in the mind कि ये सब कैसे? So there are many sources to find the information about the history, and that is only our next topic, that is sources of modern Indian history. Okay, let's start with that. Sources of modern history. मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं. ओके, लाइक फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सेकेंड इज सर्वे, एंड थर्ड इज मॉन्यूमेंट्स एंड टैब्स. We'll study each and every source in detail. First we are starting with the administrative records. See, ये जो administrative record की बात की जा रही है, अब जहाँ तक बात करूँ ब्रिटिशर्स की, ये लोग थे तो बड़े चंट, राइट? हमें से बात है कि इनमें दिमाग तो बहुत ही था. इनका मानना था कि हम लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करें, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले, उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उसके रिटन प्रूफ होने चाहिए. तो ये लोग हर एक छोटी छोटी बात के भी डॉक्यूमेंट्स बना के रखते थे कि जो भी एक्शंस लिए गए उनके डॉक्यूमेंट्स. लाइक आज के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं मेमोज के बारे में, आपको आएगा इंग्लिश में ग्रामर पार्ट में, नोटिस राइटिंग, फिर रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है. सो ये सारी चीज़ें जो है ये आया ब्रिटिश कल्चर में से ही है. ये आइडियाज हमने लिए उनके कल्चर में से ही है, बिकॉज उन्होंने ये कंसेप्ट लाए थे कि वट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू रिपोर्ट फॉर दैट. अगर हम लोग किसी को जॉब से निकाल रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए. किसी को हम रख रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर वाला काम. तो द थिंग इज कि हर एक एक्शन का एक रिटन रिकॉर्ड हो, ऐसा इनका मानना था. ओके, इवन पता क्या था कि इनके जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अलग से रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे. दैट रिकॉर्ड रूम, वो रिकॉर्ड रूम हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल हुए टू फाइंड आउट द डिटेल्स, बिकॉज उन रिकॉर्ड रूम्स में सारी डिटेल्स होती थी कि कब इन्होंने मीटिंग की, कब क्या हुआ, कब किसको रखा, कब किसको निकाला, कब क्या नया स्ट्रेटेजी लगाया एंड ऑल. सो उन रिकॉर्ड्स में से वी केम टू नो अबाउट मैनी एस्पेक्ट्स, राइट? Other than that, we have National Archive and National Museum. Okay, National Archive of India जो है वो न्यू दिल्ली में है and it was established in 1920s, right? उस टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था और इस जगह पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. लाइक अगर मैं और इस जगह पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं. लाइक अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो जो पास हुए थे वो वहाँ पे हैं, लीगल एक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, फिर डायरीज ऑफ ऑफिशियल्स, इवन जो नेशनल लीडर्स हमारे थे उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे, जो एक लीडर दूसरे लीडर को लेटर्स लिख के भेज रहा था, जो भी न्यू इवेंट्स वगैरह थे उनके रिलेटेड जो उन्होंने लिखा था, ऑल दोस्त पे पहले फरमान जारी किए जाते थे. आपने सुना होगा मूवीज में कि ये फरमान जारी किया गया, यानी कि कुछ ऑर्डर्स वगैरह जो पास किए जाते थे वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे हैं. अदर देन दैट कुछ पुरानी बुक्स हैं, कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, यानी कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे, किसके लिए चल रहे थे, क्या क्या एक्शंस लिए गए थे, वो सारी चीज़ें भी मीन्स बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड डिटेल्स उन डॉक्यूमेंट्स में हमें अवेलेबल हैं. और ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कॉलर्स को, हिस्टोरियंस को बहुत काम आए हैं टू स्टडी अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. ओके, सो दैट इज द वन थिंग, दैट इज नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया. ओके, द नेक्स्ट वन इज द नेशनल म्यूजियम. नेशनल म्यूजियम और बहुत सारे और भी म्यूजियम्स हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जिससे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. ओके, तो द थिंग इज कि ये दो जो जगह है और अदर देन दैट उनके रिकॉर्ड बुक्स, ये सारी चीज़ों ने हमें
बहुत ज़्यादा हेल्प किया टू फाइंड डिटेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज सर्वे। सी, Britishers believe that when you want to rule on any country, you should know each and everything about that country. मीन्स ये लोग बोलते थे कि किसी सिस्टम पे अगर आपको रूल करना है तो उस सिस्टम के अंदर आपको उतरना पड़ेगा, आपको उस सिस्टम के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल पता होनी चाहिए, then only you can rule that thing. Okay, so इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी एक डिटेल्ड मैप बनाया था इंडिया का, पूरी कंट्री का, कि क्या क्या चीजें यहाँ पे है। लाइक फॉर सपोज उन्होंने एक रेवेन्यू सर्वे किया था। एज यू नो कि ये लोग जो है विलेजेस वगैरह में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एग्रीकल्चर पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राइट। तो इन्होंने एक रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किया था इन विच दे हैव collected the information about the topography, soil quality, flora, fauna, local history, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वहाँ पे फार्मर्स कितने हैं, वहाँ पे किस तरह से ये पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम चलता है, व्हाट दे यूज, किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एंड ऑल सारी चीजें इन्होंने डिटेल में पता की। एंड आफ्टर दैट दे हैव मेड देयर स्ट्रेटजीज कि किस तरह से उस पर रूल करना है, किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। सो दीज आर द थिंग्स जो उनका मानना था कि वी हैव टू कंडक्ट द सर्वे रिलेटेड टू दीज इंफॉर्मेशन। ओके, सो सिमिलरली एक ऐसा भी था कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी दे हैव स्टार्टेड सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे तो खैर आज भी होता है, हर 10 इयर्स में सेंसस रिपोर्ट रेडी की जाती है, जिसमें ये लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग हैं, यानी कि पॉपुलेशन कितनी है, कौन से ऑक्यूपेशन में है वो लोग, कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, कौन से रिलीजन वाले लोग हैं। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन सेंसस सर्वे में ली जाती है। ओके, सो that type of census survey was conducted from the end of the 19th century, जिसका बहुत अच्छा खासा फायदा ब्रिटिशर्स ने भी उठाया। लेकिन आज डेवलपमेंटल स्टेप्स लेने के लिए हम भी सेंसस सर्वे करते आ रहे हैं, उस टाइम से चल रहा है, अभी भी सेंसस सर्वे होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सर्वे, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स को अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करने में, किस तरह से क्या स्टेप्स लेने हैं वो प्लान करने में वो हेल्पफुल होता था। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट्स थी पहले के टाइम की, वो भी तो हमें काम आई ना, राइट। सो दीज सर्वे रिपोर्ट्स आर वेरी यूजफुल टू द हिस्टोरियंस टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री। अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज मॉन्यूमेंट्स एंड टाउन्स। So in case of monuments and towns, Britishers have constructed many things like forts, residential offices, public buildings, quarters, and many things, right? Other than that, they have constructed the Victoria Memorial in Kolkata. You may have heard about that. Victoria Terminus in Mumbai, Fort William in Kolkata, Rashtrapati Bhavan. These are some important buildings which were constructed by Britishers. अब ये इन्होंने जो कंस्ट्रक्शंस करवाए, इसके पीछे इनके क्या लॉजिक थे, वो लोग इन सारी बिल्डिंग्स का क्या यूज कर रहे थे, क्यों इन्होंने इन सारी चीजों पे पैसा इन्वेस्ट किया, ये सारी बातों से we came to know about their thinkings, their strategies, कि उनकी strategies क्या थी, why they have constructed all these things. तो ये सारे मॉन्यूमेंट से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है about the history, right? Sources of our history. Okay, now the question arises, what official records hide? अब देखो ये सारी चीजें तो हमने स्टडी की, इन सारी चीजों से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स की क्या थिंकिंग थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनकी क्या स्ट्रेटजीज थी, उनका क्या मानना था, उन्होंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए थे, बट लोगों की क्या ओपिनियन थी वो तो नहीं पता चला, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, व्हाट द सफरिंग्स ऑफ दोज पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम सच अ डोमिनेटिंग रूल, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, ये सारी चीजें पता करने के लिए ये रिकॉर्ड्स तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, राइट। तो हमें लोगों की साइड के जो भी एक्सपेक्टेशंस, जो भी उनके ओपिनियंस हैं, जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं, वो कैसे पता चलेंगे, गवर्नमेंट के बारे में पता चला। तो जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो दोनों तरफा पता होना चाहिए ना। आज अगर आपको एक पार्टी के बारे में पता है कि ब्रिटिशर्स का क्या सोचना था,
तो लोगों का क्या सोचना था, लोगों का क्या व्यू था, दैट वी शुड आल्सो नो, राइट। उसके लिए वी वर हैविंग मेनी सोर्सेज, लाइक we are going to study about that in detail. See the next topic, that is only the topic जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से sources थे जिनसे हमें लोगों के व्यू पॉइंट के बारे में पता चले। Okay, talk about the sources to find the people's viewpoint. So there are many sources like autobiographies, travelers' account, novels, poems. There were many writers, many authors who have written about the Indian history, Indian people's experience of that time. Okay, like Vincent Smith, Max Muller, there are many such foreign authors who have written about the Indian history along with the Indian philosophy. By reading those works, we come to know about the people viewpoint, right? Other than that, there are many books in which the collection of speeches by great leaders like Gandhi ji, Jawaharlal Nehru are given in those books. अब उन बुक्स के कलेक्शन को भी अगर हम रीड करें तो विल कम टू नो कि हमारे लीडर्स ने लोगों को कैसे मोटिवेट किया टू फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो वो सारी स्पीचेस आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। इन इंग्लिश आपने देखा होगा कई बार उसमें भी स्पीचेस वगैरह दी होती हैं कुछ राइटर्स की, राइट। सो ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें कलेक्शन होता है इन सबकी स्पीचेस का, तो इन लीडर्स ने किस तरह से मोटिवेट किया, दैट वी विल कम टू नो अबाउट फ्रॉम द बुक्स। Other than that, there were many newspapers published in India during that period to make the people understand their view. Okay, एक दूसरे के व्यू लोगों तक पहुंचे, उसके लिए लोग अवेयर हो, उसके लिए न्यूज़पेपर्स जो है वो पब्लिश किए गए। लाइक अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो पहले तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, लेकिन फिर बहुत सारी दूसरी लोकल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होने लगे, लाइक तमिल, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी, एंड all these languages जो है newspapers publish होने लगे। Other than that, राजा राम मोहन रॉय ने मिरत उल अकबर ये इन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर पर्शियन लैंग्वेज में। फिर दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने भी केसरी मराठी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, पब्लिश किया था। महराठा इन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था। सो इस टाइप के बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर में क्या होता है, तो न्यूज़पेपर में कहीं पे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कहीं पे कुछ फोटोज के थ्रू, कुछ कार्टून्स के थ्रू, कुछ लेटर्स जो हैं वो पब्लिश करके लोगों को अवेयर किया जाता है। मीन्स अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग प्रिंटिंग करके लोगों को अवेयर किया जाता था। ओके, न्यूज़पेपर्स अगर मैं बात करूँ तो देयर आर मेनी फोटोग्राफ, रेडियो ब्रॉडकास्ट, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, पेंटिंग्स एंड ऑल, जिनकी वजह से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे पेंटर्स थे जिन्होंने उस चीज़ को, जो चीज़ें वर्ड्स में डिस्क्राइब होकर लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, उस दर्द को, उस एक्सपीरियंस, जो लोगों का वो एक्सपीरियंस था, उसको उन्होंने क्या किया, थ्रू पेंटिंग्स दिखाने की कोशिश की। मीन्स इन द वन और द अदर वे दे वर ट्राइंग टू मेक द पीपल अवेयर, लोगों तक एक दूसरे के व्यू पहुंचाने की कोशिश की गई थी, और वो सारी चीजें आज हमें काम आती हैं, राइट। सो अगर फोटोग्राफ्स की बात करूं, बहुत सारे रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे लोगों को अवेयर करने के लिए, मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाए जाते थे ताकि लोगों में एक स्ट्रेंथ बनी रहे टू फाइट, राइट। सो इस टाइप की बहुत सारी चीजें थी जो की गई थी, और ये सारी चीजें हमारे पास अभी नेशनल आर्चिव जो है हमारा वहाँ पे रखी हुई है संभाल के। ये सारी चीजों से वी कम टू नो अबाउट द व्यू, द एक्सपीरियंस, द फीलिंग्स ऑफ those people who are facing those periods. Okay, so these are some sources by which we came to know about the viewpoint of the people. अभी मैं बात कर रही हूँ अलग अलग चीज़ों की, लाइक नॉवेल्स बोला, ऑटोबायोग्राफीज हुई, बुक्स हुई, जो भी है, ये सारे जो भी सोर्सेज हैं बनाए तो लिटरेट पर्सन ने होंगे, तो उन्होंने देखा जाए तो ज़्यादातर लिटरेट सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ये सोर्सेज बनाए होंगे, राइट। मोस्ट ट्राइबल पीपल, पुअर पीपल, पीजेंट्स who were living there and whose history, whose experiences are completely different from the literary group, right? जो एजुकेटेड लोग थे उनकी लाइफस्टाइल से, उनके एक्सपीरियंस से, ऑब्वियसली बात है कि पेजेंट्स और ये पुअर पीपल हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए, इनके एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बात है कि इनसे काफ़ी डिफरेंट रहे होंगे एट दैट टाइम। सो व्हाट अबाउट दोस? सो टू अंडरस्टैंड
beings, their lifestyle, we have to make a unbiased and a thorough study of the history. In depth, we have to learn about the history, right? And that we will learn gradually in the further chapters, right? So here our chapter number 1 is over. In the next video, we are going to learn the next chapter of that history part. Okay? Thank you.